This being October Breast Cancer Awareness Month, I'll take this opportunity to talk about breast cancer and cancers in broad. The first things first, there's a question that comes to everyone's mind: what is cancer? और क्या कैंसर मुझे अफेक्ट कर सकता है? एंड is cancer a death sentence? So I'll talk about cancers. Broadly, कहीं पे भी कोई सेल अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता जाए, so uncontrolled division of the cell to form more colonies of its type or unstoppable growth is called as tumor. तो बॉडी में एक बड़ा ही अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है कि जिससे एक ट्रिगर फैक्टर होता है जिसमें कि जिससे सेल को ट्रिगर मिलता है टू ग्रो, एंड सेकंड इज इट्स स्टॉपिंग फैक्टर कि जहां पे उसको ये पता है कि इतनी ग्रोथ के बाद आई हैव टू स्टॉप. ट्यूमर में वो जो स्टॉपिंग फैक्टर है वो खत्म है. ट्रिगर फैक्टर इज देयर बट द सप्रेसर जीन, द जीन दैट सप्रेसेस द ग्रोथ, दैट इनहिबिट्स और gives a signal to the trigger gene कि बस enough, no more cell production is required. So that imbalance creates tumors. How does that imbalance occur? Due to environmental factors, what we call as sporadic malignancies, and due to inherited malignancies. कुछ malignancies ऐसी होती हैं जो कि they pass on from one population to another population in the same family, they run in the families, and some are sporadic, can be found in one family, फिर दो तीन चार families में नहीं है, किसी और family में है. So broadly divided, inherited and sporadic. Breast cancers are usually like 95% of the breast malignancies, or say 90% of the breast malignancies are sporadic due to environmental reasons. And 5 to 10% are the ones which can be inherited. Inherited in the sense there is a mutation in the suppressor gene, the one that stops the growth of cells. Because of that mutation there is uncontrolled growth, and the likelihood of malignancy increases in populations which have this kind of mutation. Genetically these mutations are called as BRCA1, BRCA2, broadly the mutations, which are the population or the families in which these mutations are there, the likelihood of malignancy increases as compared to the general population. So because of this uncompromised growth, there is no differentiation of activity between the cells. Normally हम देखेंगे कि हमारा हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है. सो लिवर हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म, आईज हैव अ डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म, ब्रेन हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म, बट ऑल द सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गन हैव अराइजन फ्रॉम अ सिंगल सेल. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरी सेल डिफरेंशिएट्स टू अ पर्टिकुलर फंक्शन. बट मैलिग्नेंसीज में वी लूज दैट, द सेल्स लूज दैट पावर ऑफ डिफरेंशिएशन. दे जस्ट ग्रो. They keep growing, and because of their uncontrolled growth, there is a compromise of the activity of the differentiated cells. Broadly, जो cancers हैं उनको हम solid organ malignancies और hematological malignancies में divide करते हैं. Solid organ malignancies हो गई thyroid, salivary glands, internal organs कोई भी, breast, और hematological malignancies हो गई जो कि bone marrow से शुरू हो रही हैं, blood से शुरू हो रही हैं, leukemias. सॉलिड ऑर्गन्स में जो कि विजिबल ऑर्गन्स हैं उनकी मैलिग्नेंसीज यूजुअली इजीली डिटेक्टेबल होती हैं, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी हो गई, थायराइड मैलिग्नेंसी हो गई, पेनाइल मैलिग्नेंसी हो गई. क्योंकि ये ऑर्गन्स एक्सटर्नली एक्सपोज्ड हैं तो इनका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो जाता है. एंड ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी स्पेसिफिकली अगर हम इसको ढंग से फॉलो अप करते जाएं, जैसे रिकमेंडेशंस हैं अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन की और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने पेशेंट्स के लिए और फॉर दैट मैटर जनरल पॉपुलेशन के लिए एक
फॉलो अप दिया है कि इस समय पे ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, कितने कितने समय पे करानी है. दिस इज़ फॉर द एवरेज पॉपुलेशन. एंड द पॉपुलेशन विच आर एट हाई रिस्क, जैसे कि फैमिली रिस्क है, फैमिली में किसी को हुआ है या कोई और मेलिग्नेंसी एग्जिस्ट करती है कि जैसे ओवरी कैंसर किसी को हुआ है तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उसमें बढ़ जाते हैं. उनमें हम थोड़े और एग्रेसिवली अप्रोच करते हैं डायग्नोस्टिक चीज़ों के लिए. सो ओवर द ईयर्स आई हैव सीन दैट because of the stigma attached with malignancy and also lack of knowledge की वजह से the tumors are detected at a later stage, जो कि हम पहले अगर डिटेक्ट करें तो they are easily treatable. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में एक छोटी सी लंपेक्टोमी करी जाएगी, ब्रेस्ट का वो वाला एरिया निकाल देंगे और ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है. सो इट इज़ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ब्रेस्ट निकालनी नहीं पड़ती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज में पता चला है तो वी डू नॉट हैव द ऑप्शंस. वी डू हैव द ऑप्शंस. इवन इन स्टेज 4 वी हैव गुड ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के साथ स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी भी काम करती है. मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं. रिसेप्टर पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड है उनकी ग्रोथ के लिए. सो वी कैन ब्लॉक दोज रिसेप्टर्स टू हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर. ये ट्यूमर्स बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद इनको हार्मोनल थेरेपी भी रख दिया जाता है पेशेंट्स को ऐसे, और चांसेस ऑफ रिकरेंस इनमें बहुत कम हो जाता है. यूजली हम क्या रिकमेंड करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स है, बट द चांसेस ऑफ मिसिंग एंड डायग्नोजिंग एट अ लिटिल लेटर स्टेज आर मोर. सो हम 50 ईयर्स के ऊपर तो मेमोग्राफी सजेस्ट करते हैं एवरी 2 ईयर्स फॉर जनरल पॉपुलेशन. हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो इट इज़ लाइक एवरी 1 ईयर यू हैव टू डू मेमोग्राफी. 45 to 49 वाला जो एज ग्रुप है उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एसोसिएशन ऐसा बोलती हैं कि मेमोग्राफी एवरी 2 ईयर्स रिपीट करनी है. कुछ बोलती हैं कि अगर आप एग्रेसिव एज ग्रुप उसमें क्राइटेरिया में आते हो, फैमिली मेम्बर है या कोई और मेलिग्नेंसी एग्जिस्ट करती है, तो आपको मेमोग्राफी करानी है. नहीं तो मेमोग्राफी रिक्वायर्ड नहीं है, खाली एग्जामिनेशन बाय अ फिजिशियन और बाय योरसेल्फ होता है. बट ब्रॉडली मेमोग्राफी इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्ट कि जिससे हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कर सकते हैं. अब सवाल आता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? जैसे कि मैंने कहा, स्पोरेडिक कोजेज में यूजली एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत चीज़ें हैं. हम जो खाना पीना खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एल्कोहल का इंटेक बढ़ा हुआ है, दीज कुड बी द फैक्टर्स. जेनेटिक में म्यूटेशंस है, जैसे कि मैंने बताया BRCA1 म्यूटेशन है. तो जिन फैमिलीज में ये म्यूटेशन होगी उसमें मेलिग्नेंसीज का चांस बढ़ जाता है. स्पोरेडिक में और जो रीजंस हैं वो, जैसे कि स्टडीज़ में पाया गया है, फीमेल्स जिनमें अर्ली मेनार्के है या लेट मेनोपॉज है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी या रिस्क ज़्यादा है. देन टाइमिंग ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिन लेडीज़ में फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 ईयर्स के बाद है उसमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी थोड़ा बढ़ जाता है. देन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज जिन लेडीज़ में करा जाता है, अगर वो लाइक 5 साल से ज़्यादा हार्मोनल थेरेपी पे, तो उनमें रिस्क ऑफ ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी थोड़ा बढ़ जाता है. और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न देखा गया है, जो रेडिएशन एक्सपोजर एट यंग एज है, कि जैसे किसी और मेलिग्नेंसी के लिए रेडिएशन थेरेपी दी गई, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा है, उसके लिए अगर आपने रेडिएशन थेरेपी करी गई है ड्यूरिंग द यंग एज, तो इन पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो ब्रॉडली हैं, सर्जरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर सर्जरी पॉसिबल है अर्ली स्टेज में सर्जरी करके लंपेक्टोमी या कंप्लीट मेस्टेक्टोमी, मतलब कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करी जाती है. उसके बाद कीमोथेरेपी, एंड डिपेंडिंग ऑन द हार्मोनल स्टेटस कीमोथेरेपी करके रेडिएशन की तरफ करते हैं.
अप्रोच इज़ एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी। इसके लिए पूरी टीम का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, पूरी टीम होनी ज़रूरी है। किसी भी हॉस्पिटल में आप अप्रोच करते हैं मगर टीम होती है, टीम ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सबकी सलाह के बाद ही ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबकी सलाह एक पर्टिकुलर ट्यूमर को ठीक से स्टेज करके उसको आगे ट्रीटमेंट ले जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कहना यह है कि ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इवन लेटर स्टेजेस में भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, बिकॉज आजकल की कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं कि वी आर एबल टू ट्रीट इवन द एडवांस केसेस। ऑन दिस ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ, मैं अगेन बिफोर आई एंड ओवर माई कन्वर्सेशन, आई वुड वॉन्ट टू कन्वे दैट diagnose early, treatment early, and save life.